molality. Next concept that we have to discuss is molality. It is molality. Molality. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? What is the molality of the solution? Solution का molality क्या होता है? It is number of moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg solvent में जितना mole of solute present होगा वही उस solution का molality होगा. Are you getting this? So it is number of moles of solute. It is number of moles. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. It is number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called tell me molality. Called molality. और molality को कैसे एक्सप्रेस करोगे? स्मॉल m से. और molarity को कैसे एक्सप्रेस करोगे? कैपिटल M से. तो what is molality बताओ? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg solvent में जितना मोल ऑफ solute होगा वही solution का क्या होगा? molality होगा. 1 kg solvent में 1 mole of solute है. What will be the molality of the solution? 1. Right ना? 1 kg solvent में 5 mole of solute present है. तो what is the molality of the solution? बोलो. 1 kg solvent में 5 mole of solute present है. तो what is the molality of the solution? 5. अच्छा चलो अब ऐसे करते हैं कि 3 kg solvent में 4 mole of solute present. 4 mole solute present. 3 kg solvent में 4 mole of solute present है. तो बताओ 1 kg solvent में कितना mole of solute present होगा? 4/3 mole. 4/3 mole of solute present होगा. 4/3 mole solute present होगा. Isn't it? 3 kg solvent में 4 mole of solute है तो 1 kg solvent में 4/3 mole of solute present होगा. तो 1 kg solvent में जितना mole of solute present होता है वही solution का molality होता है ना? Yes, 1 kg solvent में जितना mole of solute present होता है वही solution का molality होता है ना? तो यहाँ पे molality कितना हो गया बताओ? It is 4/3 हो गया. Molality of the solution is how much? 4/3. What is 4 here? Mole of solute. And what is 3 here? Weight of solvent in kg. Weight of solvent in kg. तो molality को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं बताओ? Mole of solute upon weight of solvent in kg. Mole of solute upon weight of solvent in kg. Any problem in understanding? No, sir. Yes. No, sir. So how can we express molality? Molality is mole of solute upon weight of solvent in kg. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 10 molality. 10 molality is equal to, yes, tell me. It is mole of solute upon weight of solvent in kg. Molality is equal to mole of solute upon weight of solvent in kg. Any problem in understanding? No, sir. No. तो अब क्या लिख सकते हैं बताओ? This is molality, small m. Mole of solute की जगह आप क्या लिख सकते हो? Tell me. Weight of solute upon molecular weight of solute. Weight of solute upon molecular weight of solute. Isn't it? और weight of solvent in kg को क्या लिख सकते हो? Weight of solvent in gram upon 1000 लिख सकते हो ना? Weight of solvent in kg 5000 kg 5000 gram of solvent है. What is the mass of solvent in kg? 5000 upon 1000 मतलब 5 kg ना?
Yes, sir. यस, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000 लिख सकते हैं. दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, टेल मी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा? 1000. तो मोलालिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000 लिख सकते हैं, राइट? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बताओ? इसका मतलब मोलालिटी क्या मिलेगा? टेल मी. मोलालिटी विल बी इक्वल टू weight of solute, weight of solute upon molecular weight, upon molecular weight of solute into 1000 upon, tell me, weight of solvent in grams. Are you getting this? ये समझ में आ गया आपको? तो मोलालिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हो जाएगा. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, No, sir. नो. तो व्हाट इज मोलालिटी? एक बार फिर से बताओ. कोई एक स्टूडेंट बताओ मुझे, व्हाट इज मोलालिटी? the number of moles of solute present in 1 kg solvent. यस, उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या मिला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मोल ऑफ सॉल्यूट को एक्सपेंड किया, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक्सपेंड किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को एक्सपेंड किया, तो हमें क्या मिल गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मिल गया. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. नो. तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया है ना, बोर्ड टाइप के एग्जाम्स के लिए, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए. इसमें भी क्या है? 4 वेरिएबल्स हैं. एक क्या है? मोलालिटी. दूसरा क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट. तीसरा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और चौथा क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? चलो, अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों ने मोलालिटी के अलग अलग रिलेशंस देखे, वैसे ही हम लोग मोलालिटी के भी अलग अलग रिलेशंस देख लेते हैं. कई बार क्या होता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन होता है या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन होता है और हमसे मोलालिटी कैलकुलेट करने को बोला जाता है, राइट? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी. Relation between mole fraction and molality. So next it is the relation between, tell me, mole fraction. Relation between mole fraction and molality. Relation between mole fraction and molality. ठीक है? चलो इधर ध्यान दो. मोलालिटी क्या सीखा था हम लोगों ने, ये बताओ. Where molality is equal to, क्या सीखा था? It was mole of solute upon weight of solvent. Mole of solute upon weight of solvent in kg सीखा था. यही सीखा था ना मोलालिटी में हम लोगों ने. यस. अब ये हमें एस्टैब्लिश करना है इसका रिलेशन किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ. चलो अब इधर देखो. अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा, टेल मी क्या लिखूंगा? व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? बोलो. सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. यही सीखा है ना हम लोगों ने? Yes, sir. आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? What is mole fraction of solute? Solute का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. क्या सीखा था बताओ? It is mole of solute अपॉन n total था. n total का मतलब क्या था?
सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलाकर था ना? यस Yes, sir. यस। तो यहाँ पर से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर से मैं मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ बताओ? मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू एन टोटल, लिख सकता हूँ क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू एन टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ना? Yes, sir. यस। चलो ये अपना रिलेशन 2 हो गया। इस रिलेशन 2 से हमें न्यूमरेटर मिल गया ना हमारा। हम मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू एन टोटल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस बोलो। Yes, sir. यस। अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो फिर से क्या करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? यस जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? number mole of solvent divided by टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total moles in solute and solvent. हाँ, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल लिख सकते हैं क्या? एन टोटल का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट है ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल हो गया। फाइन, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? अब बताओ यहां से मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या मिलेगा? व्हाट इज मोल ऑफ सॉल्वेंट? मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into n total, isn't it? Mole of solvent is equal to mole fraction of solvent. Mole of solvent is equal to what? Mole fraction of solvent into n total. ये मिलेगा ना हमें? Yes, sir. Yes, हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास है ना? ओके, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो आप? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं क्या? मोल ऑफ सॉल्वेंट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू एन टोटल। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बताओ? वेट ऑफ solvent, weight of solvent is equal to क्या हो जाएगा? Tell me. It is mole fraction of solvent into n total into molecular weight of solvent हो जाएगा। यही होगा ना? ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट and this is mole fraction of solvent into n total. तो weight of solvent हमें क्या मिल जाएगा बोलो? Mole fraction of solvent into n total into molecular weight of solvent. Understood? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर देखो weight of solvent तुम्हें किसमें मिल रहा है? Mole fraction का कोई यूनिट है क्या? कोई यूनिट नहीं है। यूनिट कैसे होता है mole fraction? n total का यूनिट क्या होगा? मोल। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, यही होता है ना? यस। तो ये मोल है और ये ग्राम पर मोल है, तो मोल और मोल कैंसिल। तो ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल रहा है बेटा, ये किसमें मिल रहा है? ग्राम्स में मिल रहा है। और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए? केजी में चाहिए। वेरी गुड। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी इक्वल टू, टेल मी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू एन टोटल इनटू
mole fraction of solvent into n total into, tell me, into molecular weight of, hello, molecular weight of solvent upon 1000 हो जाएगा ना. Yes, sir. This was Yes, weight sir. of solvent in grams. तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मिल जाएगा ना. Yes, sir. यस. और ये अपना हो गया रिलेशन नंबर थर्ड. रिलेशन नंबर थर्ड. अब इस फर्स्ट वाले रिलेशन में मैं सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दूं. सेकंड क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और ये थर्ड क्या है हमारा, डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट में सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दूं तो हमें मोलालिटी मिल जाएगा ना. Yes, sir. यस. Yes, sir. इसको लिख लो पहले सभी लोग. डन. बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो रब करें. Yes, sir. अब क्या करोगे बताओ. पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, मोलालिटी इज इक्वल टू, बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या पुट करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू एन टोटल पुट कर दो, है ना. यस. Yes, sir. और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह क्या पुट करूं बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू एन टोटल इनटू, टेल मी, Molecular weight. into molecular weight of what, Solvent. molecular weight of solvent upon क्या, 1000, 1000. upon 1000. तो ये 1000 अब ऊपर चला आएगा ना, ये 1000 अब ऊपर Yes, चला sir. आएगा और एन टोटल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. यस. तो यहां से हमें क्या मिलेगा बताओ, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू 1000 अपॉन molecular weight of 1000 अपॉन molecular weight of solvent हो जाएगा. ये बात आ गई समझ. तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन molecular weight of solvent हो गया. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. ये रिलेशन आप याद रखोगे, बोलो. Yes, sir. क्या याद रखोगे, मोलालिटी इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, Mole fraction of solute into 1000 upon mole fraction of solvent into molecular weight of solute. हाँ, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. तो ये सारे जो फॉर्मूला हैं ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स की तरह आपके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करा देंगे, लेकिन ये काम तभी आएंगे ना जब ये यहाँ पे होगा. इसके लिए रिवीजन चाहिए ना रोज का. ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक छोटी सी डायरी बना लो जिसमें आप शॉर्टकट ट्रिक्स, टेक्निक्स और फॉर्मूलेज लिखते जाओ और उसको दिन भर में एक बार दो बार भी रिवाइज करोगे ना तो अभी से आपको उसकी आदत पड़ जाएगी.
ढेर सारी चीजें सीखेंगे, सीख तो लेते हैं ढेर सारी चीजें, एग्जाम के टाइम याद कितना रहता है वही हमें रिजल्ट दिलाता है ना। चलो डन, शुड आई रब इट? Yes, sir. यस। चलो अब एक क्वेश्चन करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in its aqueous solution, mole fraction of glucose in its aqueous solution is 0.25. What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? Yes, tell me. Mole fraction of glucose in its aqueous solution is how much? 0.25. है ना? Question क्या है? What is the molality of the solution? Yes, anyone? Yes, बोलो। किसी से हुआ? Aqueous solution का मतलब क्या होता है? What is the meaning of aqueous solution? Sir, water soluble. It is in water. Aqueous solution का मतलब solvent is water. Aqueous solution का मतलब solvent is water. तो आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और सॉल्वेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो एक्वस सॉल्यूशन बोल के आपको सॉल्वेंट के बारे में बता दिया गया कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और ग्लूकोज क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ग्लूकोज है, Solute. ग्लूकोज सॉल्यूट है। ओके बेटा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज गिवन टू यू, 0.25. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? यस, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में सीखा था ना, 0.75. यस, सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.25 होगा, मतलब कि ये 0.75 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो हम लोग मोलालिटी का फॉर्मूला यूज कर लें। ये क्या था मोलालिटी का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट था, यही था ना। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो, 0.25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0.75. into 1000 1000. अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 54 हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 18.5 के आसपास आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन
molecular mass of solvent. Any problem in understanding? No, sir. Should I rub it? Yes, sir. Yes, sir. देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन होता है एंड मोलैरिटी इज आस्क्ड, या फिर सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन होगा और मोलैरिटी इज आस्क्ड, मतलब कि मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेशन से क्वेश्चन हो गया, राइट ना। लेकिन अच्छे से समझो, मोलैरिटी में रिलेशन किसके किसके बीच में है? सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट के मास के बीच में है ना। और मोलैरिटी में रिलेशन किसके बीच में है? सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बीच में। तो एक जगह मोल का रिलेशन मास के साथ है और दूसरी जगह मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ है। तो अगर मैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सके, और वो क्वांटिटी क्या है? डेंसिटी। आई बात समझ? तो Yes, जब sir. कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन होगा और मोलैरिटी पूछा जाएगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन हो, या मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा जा रहा है तो भी सॉल्यूशन की डेंसिटी तुम्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन हो। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो अभी हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड molarity. Relation between molality and molarity of the solution. Relation between molality and molarity of the solution. Molality और molarity of the solution के बीच में relation. ठीक है? Yes. Yes, sir. मोलैरिटी के बारे में हमें पहले से पता है कि मोलैरिटी क्या होता है। टेल मी, मोलैरिटी क्या हो रहा था? बोलो। इट वाज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या था? बोलो। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था, राइट ना। यही था ना मोलैरिटी। बेसिक फॉर्मूला मोलैरिटी का यही था, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि क्या गिवन होगा तुम्हें? सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, density of the solution is d gram per milliliter। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? d ग्राम पर मिलीलीटर है। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी गिवन है? बोलो। d ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट the volume of the solution, let the volume of the solution is equal to 1 liter। सॉल्यूशन का वॉल्यूम एज्यूम करते हैं कि वो कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर ना। ओके, तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है, then molarity क्या होगा? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है ना। Yes, sir.
यस, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने 1 लीटर कंसीडर किया तो ये मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा ना। Yes, sir. हालांकि हमें जो फाइनल रिलेशन मिलेगा वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा, हम किसी भी वॉल्यूम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 लीटर वॉल्यूम इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर लेने से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? मोलैरिटी के। आर यू गेटिंग दिस? राइट, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर। अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर पुट करूं तो मोल ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा? फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी के। राइट ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलैरिटी हो गया। दिस इज आवर रिलेशन नंबर 2। देखो हमें हमारा न्यूमरेटर मिल गया, लेकिन आगे अब जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना कंसीडर करोगे? 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा ना। सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा ना। यस सर। तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है ना अब कि वो 1 लीटर के बराबर है। Yes, sir. तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है ना कि वो डी ग्राम पर मिलीलीटर के बराबर है। Yes, sir. यस तो सर। अगर तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है तो तुम सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हो ना। Yes, sir. यस सर। यस, तो चलो करते हैं हम लोग। हियर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं बताओ? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना। दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे अच्छे से समझो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है तुम्हें? What is the density of solution given to you? It is d gram per milliliter, right ना? Okay. Mass of solution ये हमें पता नहीं है, mass of solution ये हमें पता नहीं है ना? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बोलो? 1000 मिलीलीटर गिवन है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो यहाँ से ये मिलीलीटर और मिलीलीटर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 into d। 1000 into d ग्राम मिल गया ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1000 into d ग्राम हो जाएगा। Here you are getting mass of the solution. Understood? Yes, sir. Yes, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए तो सॉल्यूशन के मास में से क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट का मास माइनस करना। You have to subtract the mass of the solute from the mass of the solution, then you will get what? Mass of the solvent, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगेन n solute, मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं बताओ? मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं ना। यस, मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. अब इस रिलेशन 2 में मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? मोलैरिटी के। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल M मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ
solute अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. m डैश इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मिल जाएगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m into m डैश मिल जाएगा ना? यस. weight of solute is equal to molarity into molecular mass of the solute. m dash क्या है? What is m dash? m dash is molecular weight of solute. So weight of solute is what? Molarity into molecular weight of solute हो जाएगा. Any problem in understanding? No, sir. बोलो. तो अब हमें सॉल्यूशन का वेट भी मिल चुका और सॉल्यूट का वेट भी मिल चुका. तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा ना हमें? Yes, sir. Yes, tell me. Yes. तो चलो इतना सब कुछ लिख लिया है आप लोगों ने? Should I rub it? Yes. Yes, sir. ये साइड रब करो. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ सॉल्वेंट का वेट बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन 1000 डी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि mm डैश हो जाएगा. यही हो जाएगा ना? यस. 1000 डी इज व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूशन. और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? mm डैश. तो सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, ये हमें सॉल्वेंट का वेट दे रहा है ना? Yes, sir. यस. लेकिन ये सॉल्वेंट का वेट किस में मिलेगा हमें? ग्राम में मिलेगा ना? 1000 Yes, into d क्या है यहाँ पे? ग्राम है. ये मोलारिटी नहीं है एक्चुअली, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है, जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होने की वजह से मोल ऑफ सॉल्यूट की वजह से मैंने मोलारिटी लिख दिया है. तो मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू ये सॉरी इट इज मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. मोल इनटू ग्राम पर मोल. ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ये वैल्यू भी ग्राम में ही आएगी ना? दिस वैल्यू इज इन व्हाट? ग्राम. लेकिन तुम्हें वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? केजी में चाहिए. तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? 1000 डी माइनस mm डैश अपॉन 1000 हो जाएगा. इतना केजी हो जाएगा. दिस इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस. No, sir. No, This is the weight of the solvent in kg. यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं. तो अब देखो हमें हमारा न्यूमरेटर भी मिल चुका है और डिनोमिनेटर भी मिल चुका. मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या पुट कर सकते हैं? मोलारिटी पुट कर सकते हैं. और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह 1000 डी माइनस mm डैश अपॉन 1000 पुट कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? Yes, sir. यस. चलो और ये हमारा हो गया रिलेशन नंबर 3. ये रिलेशन नंबर 3 हो गया. ठीक है. चलो अब फिर से वही करते हैं हम लोग. पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. राइट. क्या मिलेगा बताओ? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ गया? मोलारिटी आ गया. और यहाँ पर क्या आ गया बताओ? 1000 डी माइनस mm डैश अपॉन 1000. राइट. तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बताओ? दस मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity upon 1000 into density of the solution minus molarity into molecular weight of solute हो गया. Molarity is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density of the solution minus molarity into molecular mass of the solute हो गया. आई बात समझ? Yes. Sir.
Yes, sir. ये अच्छे से समझ लो, ये m क्या है, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है। कैपिटल M क्या है, ये मोलैरिटी है। m डैश क्या है, m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। और d क्या है, d इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, d is density of solution. Understood? आई बात समझ? यस। तो कितने लोगों को समझ में आया? मोलैलिटी इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 1000 इंटू 1000 into molarity Molarity. अपॉन upon 1000 1000 into into density डेंसिटी ऑफ Solution. सॉल्यूशन solution माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्म आया ही नहीं, मतलब ये रिलेशन तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है ना? यस। तो ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक्स याद रखोगे ना तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व, नहीं तो फॉर्मूलाज ध्यान नहीं रहने पे दिक्कत हो जाती है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ ना, आपको उसके पीछे का डिराइवेशन भी समझा दूंगा, एंड दैट डिराइवेशन विल हेल्प इन योर यूनिट टेस्ट एंड अदर एग्जाम्स। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला नीट और जेईई में काम आएगा, ठीक है? यस yes Yes, यस। sir. Yes, sir. तो आज की क्लास समझ में आई आप सब लोगों को? Yes, sir. एकदम पक्का पक्का वाला? Yes, sir.